آپ کو بتائیں کہ میٹرک کے امتحان میں نقل مافیا کو کھلی چھٹی مل گئی۔ امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل اور موبائل فون کا استعمال ہونے لگا۔ بلدیہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کورنگی میں طالب علم کی موبائل سے نقل کرنے کی ویڈیو سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے، اور اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں۔ آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئمہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا ہے، میٹرک کے امتحانات شروع ہیں، 9ویں کلاس کے بھی پیپرز ہو رہے ہیں اور روز پیپر لیک ہونے کا سلسلہ جاری ہے، وہ روایت برقرار ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ جی بالکل، دیکھیں میٹرک کے امتحانات جو ہیں وہ اس وقت مذاق بن چکے ہیں، اور یہ امتحان کم کوئی مذاق زیادہ لگنے لگے ہیں۔ امتحانی مرکز میں جو ہے وہ کھلے عام نقل اور موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ ہونے لگا ہے۔ بلدیہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جے ایریا ہے کورنگی کا، جہاں پہ طالب علم امتحان کے دوران جو ہے وہ موبائل سے نقل کرنے میں مصروف ہے۔ میٹرک بورڈ نقل مافیا کو جو ہے وہ شکست دینے میں مکمل طور پر یہاں پہ ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے امتحانی مراکز میں موبائل فون لانے پر ضبط کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ صرف دعووں کی حد تک ہی محدود رہا، جس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر نقل جو ہے وہ اور عروج پر بڑھتی جا رہی ہے، اور نقل مافیا جو ہے وہ خاصا سرگرم نظر آ رہا ہے۔ طلبہ جو ہے وہ سینٹر کے اندر موبائل فون بھی لے کے جا رہے ہیں، اور کھلے عام جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم بات کریں تو اس اسکول کے علاوہ ایک اور اسکول جو ابراہیم علی بھائی اسکول تھا، جس کی کچھ دن پہلے جو ہے وہ خبر رپورٹ ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ غیر متعلقہ افراد اسکول کے اندر گھوم رہے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن آج پھر سے جو ہے وہ وہاں پہ دفعہ 144 کی جو ہے وہ تحلیل ہوئی ہے۔ ابراہیم علی بھائی اسکول میں موبائل کے ساتھ جو ہے وہ امتحان میں طلبہ شریک ہوا ہے۔ طلبہ موبائل سے دیکھ کر پرچہ حل کرنے میں مصروف ہے۔ گزشتہ دنوں ابراہیم علی بھائی اسکول میں بیرونی عناصر نقل کروانے میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے تھے۔ جی اچھا، جیسے کہ آئمہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو جو ہے سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے اور یہ باقی لوگوں کے پاس بھی گئی ہوگی، تو اس پر ابھی تک چیئرمین میٹرک بورڈ کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا؟ جی بالکل، دیکھیں اس سے قبل جو ہے وہ ابراہیم علی بھائی اسکول میں جو ہے وہ جب یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو اس پر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا تھا، اور چیئرمین میٹرک بورڈ نے جو ہے وہ اسکول پر دورہ بھی کیا تھا، اور دورے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ وہاں کے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن آج پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سختی ہوئی اس اسکول میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج پھر سے جو ہے وہ نقل مافیا سرگرم ہو گئی، اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ نقل شروع ہو گئی ہے اسکول میں۔ ایک بار پھر سے نقل کی جا رہی ہے۔ میٹرک بورڈ جو ہے نقل مافیا کو شکست دینے میں تاحال ناکام نظر آ رہا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ لوڈ شیڈنگ میٹرک کا امتحان دینے والے طلباء کے لیے عذاب بن گئی۔ سخت گرمی میں متعدد امتحانی مراکز میں پینے کا پانی تک دستیاب نہیں ہے۔ سخت گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث طلباء کی حالت غیر ہو گئی، جبکہ جیکب لائن گورنمنٹ بوائز اسکول میں پنکھے خراب ہونے سے طلباء کی گرمی سے حالت غیر ہونے لگی۔ کیا تفصیلات ہیں؟ آئمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئمہ بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آج جو ہے وہ چھٹا روز ہے، لیکن جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ کے لیے جو ہے وہ عذاب بن گئی ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی شکایت جو ہے وہ برقرار ہے۔ کراچی امتحانی مراکز میں میڈیا کے داخلے پر بھی پابندی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ خبر میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے رپورٹ کرنی ہو یا جو ہے وہ طلبہ کو بنیادی سہولیات کا فقدان ہو، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ میڈیا نمائندگان کو سینٹر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور بارہا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتھارٹی لیٹر لے کر آئے، اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا نمائندگان کو سینٹر کے اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی۔ جبکہ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد سینٹر ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ غیر متعلقہ افراد جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دن کراچی میں بے قابو ہے، اور مختلف علاقوں کی طرح جیکب لائن میں بھی جو ہے وہ امتحانی اوقات کے دوران جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے باعث طلبہ کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سخت گرمی میں متعدد امتحانی مرکز میں پینے کا پانی بھی جو ہے وہ دستیاب تک نہیں ہے۔ شہر کے متعدد امتحانی مراکز کے باہر جو ہے وہ پولیس بھی غائب ہے۔ نقل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات جو ہے وہ تاحال نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جیکب لائن گورنمنٹ بوائز اسکول میں جو ہے وہ پنکھے خراب ہے، طلبہ کی جو گرمی سے حالت ہے وہ بھی غیر ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ملیز کے علاقے میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے باعث طلبہ جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ خاصی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے امتحان کے دوران۔ جی اچھا آئمہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر توانائی ناصر شاہ نے اس پر نوٹس تو لیا ہے، تو کیا اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا اب تک؟
जी बिल्कुल, देखें आज वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की जानिब से जो है वो नोटिस लिया गया है, लेकिन जो है वो हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह जो है वो इम्तिहान जो हुआ उसमें भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा, और जो है वो इसके अलावा जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से हमें जो है वो इम्तिहान के शेड्यूल और जो है वो सेंटर्स की लिस्ट फराहम नहीं की गई थी, जिसके बायस जो है वो हम अपने पुराने शेड्यूल के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जो है वो मैट्रिक बोर्ड की गफलत, मैट्रिक बोर्ड और के इलेक्ट्रिक दोनों की गफलत का खमियाजा जो है वो इस पर तलबा भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग की सूरत में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पेपर देते हुए कुछ तलबा जो है वो बेहोश भी हो गई थी। गुज़िश्ता दो दिन पहले हमने ये खबर रिपोर्ट की थी, और आज भी जो है वो लोड शेडिंग के बाद तलबा की हालत जो है वो खासी ख़राब दिखाई दे रही है इम्तिहान के दौरान। जी, मैट्रिक बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की गफलत का जो खमियाजा है वो तालिबात को भुगतना पड़ रहा है, और इम्तहानात में गर्मी में बैठकर वो इस वक्त इम्तहान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मज़ाक बन गए। कोरंकी के निजी स्कूल में पैसे देकर नकल कराई जा रही है। सेंट्रल सुप्रीडेंट की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान से बदतमीजी की गई। टाउन ऑफिसर को स्कूल में जाने से ही रोक दिया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है, हमारी नुमाइंदा आयमा हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मैट्रिक के इम्तहानात जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मजाक बन चुके हैं। इस वक्त मैं जो है वो शहनाज स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो इम्तहानी मरकज़ बनाया गया है, लेकिन जो है वो अंदर ये इलाका मकीन और दीगर जो अंदर पेपर देने वाले तलबा हैं उनका ये बताना है कि शहनाज सेंटर में जो है वो पैसे दे के नकल करवाई जा रही है। जब यहाँ पे मीडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे मीडिया की टीम पहुँचने पर जो है वो मीडिया वालों से बदतमीजी की गई है, और जो है वो सेंटर के अंदर जाने से मना कर दिया गया। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा अंदर की क्या सूरत हाल है? बेटे, मैं तो अभी आके यहाँ पे बैठी हूँ, अभी आई हूँ। मेरे को अंदर घुसने ही नहीं देते थे, बोलते थे नहीं आओ। मैं अभी अंदर गई हूँ, बैठी हूँ। मैंने कहा है आपने पंखे नहीं लगाए हुए, बच्चे बीमार हैं, उनको टाइफाइड बुखार है, वो आए पेपर देने। फी हजारों लाखों कमाते हो तुम लोग, तो पंखे नहीं लगाए हुए। पहली तो गलती हमारे उस स्कूल वालों की है। हमारे बच्चे इस एरिया में हम पढ़ाते ही नहीं है। बाहर वहाँ एजुकेटर में पढ़ाए हैं, दूसरे स्कूल हैं, जो माई स्कूल है, जो भी हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, मगर वार्ड इसमें लेटरीन के उस कचरा कुंडी में ला के डाल दिए। अच्छा आंटी, क्या कहेंगी अंदर जो नकल हो रही है उस हवाले से? क्या नकल का मुझे नहीं पता, मैं क्यों ईमान गंदा करूं। मैं आज करके आई हूं। बाकी जो पैसे लेके वो कौन है, लश्कर है क्या है, उसको बुलाओ बाहर। वो अंदर क्यों अंदर घुसा हुआ, वो पैसे लेता है लोगों से और करते हैं, पैसे लेके लोगों से करते हैं। हम ना देते हैं और ना हम नकल करवाते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मैं जो है वो इस वक्त शहनाज पब्लिक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, और जो है वो मीडिया नुमाइंदगान को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। जबकि यहाँ पे जो है वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट ने भी विजिट करने की कोशिश करी तो उन्हें भी जो है वो रोक दिया गया। कहा गया कि अथॉरिटी लेटर और दीगर चीज़ें जो है वो लेकर आए, उसकी बुनियाद पर जो है वो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। लिहाजा जो है वो यहाँ पे लोगों का भी ये बताना है, और ये इस बात का इंकिशाफ किया जा रहा है कि अंदर जो है वो पैसे दे के नकल करवाई जा रही है। जो लोग जो है वो पैसे देते हैं उनको जो है वो नकल करवाई जा रही है, और जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनको जो है वो नकल नहीं करवाई जा रही है। अंदर जो है पैसे दे रहे हैं उनको नकल करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आयमा खान, हमें अपडेट कर रही थी। MQM पाकिस्तान कौमी असम्बली आसिया इसहाक का मलिक के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा। कहती है इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग और सहूलियात की अदम फराहमी मैट्रिक बोर्ड की नाअहली है। मज़ीद जान लेते हैं फ़रहान खान से। जी फ़रहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मलिक सऊदाबाद एक से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। क्लास होम मैथ का जो वो आज पेपर जो है वो लिया जा रहा है। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली और इंतज़ामिया की बदनिज़ामी के बाइस इम्तहानात में जो ऑफ से शिकायत का सिलसिला जो वो मौसूल हमें देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली रुकन MQM पाकिस्तान आसिया इसहाक जो वो खुद इस सेंटर के अंदर आई भी और दौरा भी किया। मुझे बताइएगा कि किस तरीके के इंतजाम आपने देखे? यही वो शिकायत थी जो हमारे पास आई थी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो स्कूल हैं और बिलुमून पूरे कराची के अंदर ये वाली सूरत हाल है। 312 अरब रुपए सालाना सिंध हुकूमत तालीम के नाम पर ख़र्च करती है, और तालीम का ये हशर है जो आपके सामने मौजूद है कि बच्चे दरियों में बैठ के इम्तिहान दे रहे हैं। यहाँ पंखा तक नहीं है, जो प्लास्टर तो दूर की बात है, पंखा तक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी साजिश कराची और तालीम के साथ नहीं हो सकती है। ये कराची और तालीम के साथ साजिश है कि हमें ये मालूम चला कि भाई सिंध की गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है कि इलेक्ट्रिक को, कि यहाँ पर सेंटर बन रहे हैं, वो सेंटर एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन इनको चूँकि कराची से
कराची की तालीम से, कराची के लोगों से शदीद तरीन नफरत है, लिहाजा इन्होंने ये कि इलेक्ट्रिक को हवाले नहीं किए। हम आए, आप यहाँ पर पूछें अभी यहाँ पर बिजली आ रही है कि कैसे आ रही है? इसीलिए आ रही है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पहुँचे, यहाँ बात की है और बिजली आई है। MQM पाकिस्तान ये वाला काम करेगी। हमारा काम एहतजाज करना नहीं है, हमारा काम लोगों को आसानियाँ पैदा करनी है और ये हम करते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान का काम जो है वो काम आसान करना है और एहतजाज करना नहीं है, ना ही जो है वो सड़कों पर निकल के बच्चों को पेपर के दौरान जो है वो जलसे जुलूसों के पीछे लगाना है। MQM पाकिस्तान ने जो हमेशा जो वो बच्चों के हक़ में खड़ी हुई है और हमेशा जो वो उनके हक़ में जो काम करने के लिए निकली। जी, कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। कोरंगी के निजी स्कूल में पैसे देकर नकल करवाई जा रही है। सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से मीडिया नुमाइंदान से बदतमीज़ी की गई और टाउन ऑफिसर को स्कूल में जाने से ही रोक दिया गया। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात नाज़रीन मजाक बन चुके हैं और कोरंगी के निजी स्कूल की बात करें जहां पर पैसे देकर नकल करवाई जा रही है। सुप्रिटेंडेंट का इस पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इन्होंने तो मेरे खिलाफ कवरेज, आज मैडम बहुत अच्छे से कवरेज लीजिएगा। मैं आपने जो बोला था ना, आपके मेरा नाम, मैं CS हूँ, लश्कर अली नाम है। बिल्कुल ये मैं सारे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। C21 चैनल ने खबर चलाई है कि सिर्फ 5 कमरे हैं। माशाल्लाह से आज मीडिया आ चुकी है, ये बात साबित होगी कि कितने कमरे हैं। ठीक है, नहीं सर, सारी चीजें होगी सर। आप मुझे अथॉरिटी लेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल तो बहुत सारे हैं सर। यहाँ पर कोई भी आएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल तो हम उसको डिपार्टमेंट से अथॉरिटी लेटर नहीं। आपको मैं ये अभी एग्जाम हो जाए, मैं आपको सारे कमरे इस ब्लॉक के भी उसके भी काउंट कराऊंगा। आपके चैनल ने चलाए ना 5 कमरे हैं, आपके चैनल ने जो जो बोला है वो सारी चीजें दिखाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम हम सॉरी टू से आप मुझे कंट्रोलर ऑफिस से वहाँ से परमिशन दिलवा दे, एक नहीं मैं आपको 10 बार विजिट करवा दूँ। बल्दिया उस्मा कराची की कौंसिल का मुलतवी शुदा आम इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 3 बजे कौंसिल हॉल में होगा। इजलास की सदारत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इजलास में अहम करारदादें पेश की जाएंगी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अस्पतालों को बेहतर करने की मंजूरी ली जाएगी। महकमे चार्ज पार्किंग के जरिए वेले पार्किंग फीस की वसूली की मंजूरी भी ली जाएगी और शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में प्रोग्राम अफसर की असामियों को अपग्रेड करने की मंजूरी भी ली जाएगी। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट के मौजूदा एम्प्रिस्ट अकाउंट की रकम इजाफी करने की मंजूरी ली जाएगी। आबासी शहीद अस्पताल की शोबा इत्फाल का नाम वसीला जहां शोबा इत्फाल रखने की मंजूरी ली जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची के पेश इमाम की असामी के तरीक़े तकर्रुरी में तरमीम की मंजूरी भी ली जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के मौजूदा एम्प्रेस अकाउंट की रकम में इजाफा करने की मंजूरी ली जाएगी। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की कौंसिल का मुलतवी शुदा आम इजलास जो है आज बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में कौंसिल हॉल में होगा। इजलास दोपहर 3 बजे होगा, जिसकी सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इस इजलास में अहम करारदादें भी पेश की जाएंगी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अस्पतालों को बेहतर करने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि महकमा चार्ज पार्किंग के जरिए वेले पार्किंग फीस की वसूली से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। इस इजलास में शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में प्रोग्राम ऑफिसर की असामियों को अपग्रेड करने से मुतालिक भी मंजूरी ली जाएगी, जबकि सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट के मौजूदा इम्प्रेस्ड अकाउंट की रकम इजाफी करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। इजलास में अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबा इत्फाल का नाम वसीला जहां शोबा इत्फाल रखने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि बल्दिया उस्मा कराची के पेश इमाम की असामी के तरीका तकर्रुरी में तरमीम की मंजूरी भी ली जाएगी। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के मौजूदा इम्प्रेस्ड अकाउंट की रकम में इजाफा करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे, जबकि आज के होने वाले इजलास में जो है अहम करारदादें अपोजिशन जमातों की जानिब से भी पेश किए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। अब आपको बताएं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि अपोजिशन को 7 से 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलना चाहिए। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली इस वक्त अपोजिशन लीडर के साथ ही मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी आजिज बताइएगा।
सिंध असम्बली की कायमा कमेटियों पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मीटिंग हो चुकी है। एक दो दिनों में एक और मीटिंग होनी है। अब इसमें सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि MQM को 6 से 7 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल सकती है। अलबत्ता अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इस पे बात की है। वो कह रहे हैं कि PSC की चेयरमैनशिप भी अपोजिशन को दी जाए। इस वक्त हमारे साथ सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मौजूद हैं। हम इसी मसले पे इनसे बात करते हैं। सर, ये कायमा कमेटियों की बात हल क्यों नहीं हो रही? इसको पेंडिंग या इसको तवील क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल इसको तवील नहीं किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द इसको जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। हुकूमत की जानिब हमने जो है अपना प्रपोज़ल स्पीकर सिंध असम्बली के पास रख दिया। लास्ट वीक सबको पता है कि हमारी एक मुलाकात हुई थी स्पीकर सिंध असम्बली से, हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी भी मौजूद थी और हमने अपना प्रपोज़ल जो है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोपोर्शन, हमारा जितना प्रोपोर्शन बनता है उसके अगेंस्ट हमने जो है वो स्पीकर साहब के पास जमा करा दिए। लेट्स होप कि इस वीक जो है ये चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आने लगी। कितनी कमेटियाँ अपोजिशन को मिल सकती हैं? प्रोपोर्शन बड़ा क्लियर है, 7 से 9 के दरमियान है। अब उसमें डिस्कशन और डेलिब्रेशन चीज़ें हो सकती हैं, मगर समहाउ हमने अपना प्रपोजल दे दिया। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड कि उनको क्या करना है। फिर कब मीटिंग होनी है? मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक होगी इंशाल्लाह। और आप दोस्तों को यकीनन PSC की भी अभी भी आपने बात की, आप कह रहे हैं कि PSC की चेयरमैनशिप भी अपोजिशन को मिलनी चाहिए। देखें, जो चीज़ अगर COD में बड़ी जमातों ने तय किया था और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी और कौमी असम्बली में वो अच्छी प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, तो मैं तो बस उसी चीज़ को बुनियाद बना के बात कर रहा हूँ कि जब वो चीज़ जो कि अच्छी है, वही जमातें जो मरकज़ में उस चीज़ को फॉलो करती हैं सूबे में नहीं करती हैं, तो सूबे में कर लें, एक नई तारीख रकम करें पीपल्स पार्टी। सुना आपने, ये थे सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी। इन्होंने बताया कि 7 से 9 कायमा कमेटियों का प्रोपोर्शन बनता है अपोजिशन का और इन्होंने मुतालबा किया है कि PSC की चेयरमैनशिप भी अपोजिशन के हवाले की जाए। जी, कौमी असम्बली के हल्का NA 244 से MQM के फारूक सत्तार की कामयाबी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। फारूक सत्तार की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। तफसीलात जान लेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट में कौमी असम्बली के हल्का NA 244 से MQM के फारूक सत्तार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज फारूक सत्तार की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। फारूक सत्तार की जानिब से फॉर्म 45 की कॉपियां भी जो है वो जमा करा दी गई हैं। जवाब के मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक फारूक सत्तार ने NA 244 से कामयाबी हासिल की है, जबकि एडवोकेट जो आफ्ताब जहांगीर के वकील हैं उनका ये कहना है कि फॉर्म 45 में कई जगह 100 को 1000 जो है वो किया गया है, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब किया गया है। इलेक्शन पटिशन की मज़ीद समाअत अब 27 मई को होगी। फारूक सत्तार की कामयाबी को PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने चैलेंज कर रखा है। जी, इलेक्शन पटिशन की मज़ीद समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। कराची में महकमे पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के साथ पुलिस एहलकारों की भी निगरानी शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तमाम थानों की मोबाइल वैन्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए। 40 से ज़्यादा मोबाइलों में कैमरे लगा दिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से, जो इस वक्त SSP ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक रज़ा के साथ मौजूद हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, जिसको काबू करने के लिए जो है कराची पुलिस अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SSP ईस्ट ऑफिस में, जहाँ पर बाकायदा एक मॉनिटरिंग रूम भी बना हुआ है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं डायरेक्टली SSP ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक रज़ा। अच्छा, इसकी वजह क्या बनी और ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये हम पूछेंगे SSP ईस्ट से। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध और एडिशनल आई साहब कराची और बाकी सीनियर अफसरान का ये राय थी कि कैमरास के ज़रिए मॉनिटरिंग को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोगों ने एक तो गली मोहल्लों में जो कैमरास हैं उनको भी रजिस्टर किया है। मज़ीद हमने ये काम किया है कि जो हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो लोग हमारे ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं उनको बॉडी वॉर्न कैमरास भी दिए गए हैं। और वो बॉडी वॉर्न कैमरास जब अपने साथ लगा के मुख्तलिफ़ जगहों पे शाहराहों पे गश्त वगैरह करते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि कौन कितना एक्टिव है। साथ साथ ये भी किया गया है कि जो हमारी फ़्लीट है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए उसमें भी ट्रैकर नस्ब किए हुए हैं।
तो जब हम इसको अपने कंट्रोल पैनल पे ट्रैकर्स की डेटा को निकालते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा मिलता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे कितना वक्त गुजार रही है, गश्त की सूरत में वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसकी जियो फेंसिंग भी हुई होती है गाड़ी की, जिसकी रोशनी में हमें पता चलता रहता है कि ये कितना एक्टिवली क्राइम की रोकथाम के लिए सरगर्म अमल है। शुक्रिया। इस वक्त SSP हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अब ईस्ट जोन के में जितनी भी पुलिस व्हीकल्स हैं उनमें ट्रैकर लगा हुआ है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है और साथ साथ बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं जो कि 24 घंटे में जहां जहां मोबाइल जाती है वहां की फुटेज यहां पर उसको जो है लाइव मॉनिटर किया जाता है। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि जल्द ही इसी तरीक़ेकार पर चलते हुए जो है जराइम के जो मामला हैं, स्ट्रीट क्राइम के जो मामला हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जी नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ डिफेंस फेज़ 6 के बंगले से मुलाज़मा की फंदा लगी लाश मिलने का मामला, मुतवफ़िया का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया जबकि नमूने भी ले लिए गए हैं। वाक़या कत्ल है या खुदकुशी पुलिस तहकीकात कर रही है, ताहम मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह हो सकेगी। तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। दरख्शा थाने की हदूद में गुज़िश्ता रोज़ 17 साला लड़की पारिया की पंखे से लटकी हुई लाश जो है वो बरामद हुई थी। उसको फौरी तौर के पर जिन्हें अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया था। पोस्टमार्टम उसका मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से डॉक्टर सुमैया जो पुलिस सर्जन है उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मौत की वजह को जो है वो महफूज रखा गया है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। साथ ही साथ पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। जो घर का मालिक है उससे भी जो है वो उसका भी बयान कलमबंद कर लिया गया है। जो मालिक है उसके बयान के मुताबिक वो घर से बाहर गया था और जब वो घर वापस आया तो दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा फिर उसने तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर जाके देखा कि पारिया जो है उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी की थी। एक खुदकुशी है, यह मर्डर है। इस पुलिस जो है वो इस गुत्थी को अभी तक सुलझा नहीं सकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक ये बात जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकती कि पारिया का मर्डर हुआ है या इसके साथ जो है वो खुदकुशी हुई है। ताहम पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया है, लेकिन वाकई का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। पारिया जो है वो तकरीबन 9 माह कबल कराची में मुलाजमत करने के लिए आई थी और दरख्शां थाने की हदूद में एक बंगले के अंदर जो है वो मुलाजमत कर रही थी। ताहम पारिया हैदराबाद की रिहायशी है और उसकी जो मैयत है उसको हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तदफीन के बाद उसके अहल खाना आएंगे और मुकदमा जो है वो दर्ज कराएंगे। ताहम अब तक वाकई का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। जी औरंगी टाउन मोमिनाबाद से अगवा के बाद कत्ल होने वाले 12 साला उबैद की वालिदा ने मुल्ज़िमान को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। कहती है मौत का बदला मौत होना चाहिए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी बच्ची की वालिदा के साथ मौजूद है। जी अनुषा, बताइएगा क्या कहना है वालिदा का? बिल्कुल, देखिए अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया था। उबैद जो नन्हा बच्चा था उसको उसी के बहनोई ने अगवा करके 15 लाख का तावान मांगा और फिर उसको कत्ल कर दिया। उसकी लाश प्लॉट से बरामद हुई थी। उस बच्चे की माँ, रोती माँ हमारे साथ मौजूद है और ज़रा इनसे बात करते हैं। क्या समझती हैं आप, एक माँ हैं और एक मुल्जिम जो गिरफ्तार हुए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको? अदलिया से और कानून नाफिज करने वालों से क्या मुतालबा करेंगे आप? ये मुतालबा हर से कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिलनी चाहिए और उसे भी वैसी सज़ा देनी चाहिए जैसे मेरे बच्चों को उसने सज़ा दी है। जैसे बच्चों को मेरे तकलीफ़ से मारा है वैसे उसे भी, जालिम को भी वैसे ही मारे, उसे भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी। और मैं मौत का बदला मौत चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का मौत का सामना मैं बहुत जल्दी उस कातिल का भी मौत देखूँ। मुझे मेरे दिल को जब तसल्ली होगी जब उस कातिलों का मौत देखूंगी। तो बहुत छोटा बेटा था मेरा, सबसे छोटा, सबसे लाडला, सबसे जान था। ये वो रोती माँ है जिसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया, 15 लाख तावान मांगा किया और इस रोती माँ ने अदलिया से और कानून नाफिज करने वालों से रोते हुए ये इंसाफ की अपील मांगी है कि मुल्जिम को उसी तरीके से मौत के बदले मौत सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे कराची में वाक़यात जन्म न लें। हमारे चैनल के आने का यहाँ पर मकसद ही यही है कि उस बच्चे को तो इंसाफ अब कैसे मिलेगा क्योंकि वो तो जा चुका है, लेकिन उसके घर वालों को इंसाफ मिल जाए अगर मुल्जिमान को कड़ी सज़ा मिल जाए तो। जी सिंध हाई कोर्ट में 2017 से लापता शहरी समेत दीगर की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई। अदालत ने शहरी की अदम बाजियाबी पर पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। DIG इन्वेस्टिगेशन को केस की तहकीकात करने की हिदायत भी जारी की गई है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा।
بالکل دیکھیں آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جسٹس نعمت اللہ پرپوٹو کی سربراہی میں 2017 سے لاپتہ شہری سمیت دیگر شہریوں کی عدم بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. دوران سماعت تفتیشی افسران بھی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ لاپتہ شہریوں کے اہل خانہ بھی جو ہیں عدالت میں پیش ہوئے ہیں. 2017 سے جو ہے علی رضیہ سوسائٹی سے لاپتہ ہوئے تھے، ابھی تک ان کا سراغ نہیں لگ سکا. اہل خانہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پولیس کی جانب سے بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی ہے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، جس پر جو تفتیشی افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 16 جو ہیں وہ GIT جبکہ 17 صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ GIT میں جو لاپتہ شہری تھے ان کی جبری گمشدگی ثابت ہوئی ہے. وزارت دفاع کی جانب سے بھی رپورٹ جو ہیں وہ جمع کرا دی گئی ہیں. جبکہ دوران سماعت جسٹس نعمت اللہ پرپوٹو نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کی جانب سے شہری کے اہل خانہ کے لیے مالی معاونت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، جس پر تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ سمری جو ہے وہ ارسال کر دی گئی ہے، جبکہ عدالت نے شہری کو مالی جو ہے امداد دینے کا بھی حکم دے دیا ہے اور تمام لاپتہ شہری ہیں ان کی بازیابی کو یقینی بنانے کا بھی عدالت نے حکم دے دیا ہے. عدالت نے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آئندہ سماعت تک پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. سیشن عدالت غربی میں خاتون کو گھر میں قتل کرنے کے کیس کی اہم سماعت ہوئی. استغاثہ ملزم پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا. عدالت نے ملزم کو مقدمے سے باعزت بری کر دیا. مزید بتائیں گے جواد آصف. جی بالکل دیکھیں اورنگی ٹاؤن میں گھر کے اندر خاتون کے قتل کا کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج غربی کی عدالت میں استغاثہ ملزم پر جرم ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی. عدالت نے ملزم کو مقدمے سے باعزت بری کر دیا ہے. ملزم ریاض محمد مقتولہ کا شوہر تھا جسے مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا. واقعہ ستمبر 2021 کو پیش آیا تھا جب مقتولہ کے بیٹے کو اس کے پڑوسی نے خبر دی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو گھر کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا، جس پر بیٹے نے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. عدالت نے اپنے حکم نامے میں تحریر کیا کہ واقعے کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، جبکہ جو عدالت میں 4 گواہان پیش کیے گئے اس میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ ملزم کو قتل کرتے نہیں دیکھا ہے، جبکہ جو مدعی ہے اس نے عدالت کے روبرو ملزم کو معاف کر دیا ہے اور ملزم کے خلاف وہ مزید کیس نہیں چلانا چاہتا ہے. اس نے عدالت کے سامنے یہ اقرار بھی کیا ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ استغاثہ اپنی سائٹ سے بھی ملزم پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، لہٰذا تمام شواہد اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کو مقدمے سے باعزت بری کیا جاتا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ جس پڑوسی نے خبر دی قتل کی اس نے بھی اپنی آنکھوں سے واقعہ ہوتے نہیں دیکھا تھا. واقعے کا مقدمہ تھانہ اورنگی ٹاؤن میں درج کیا گیا تھا. کراچی کے علاقے سعید آباد جنگل اسکول کے قریب کپڑے کے گودام میں لگنے والے آگ پر قابو پا لیا گیا. آپریشن میں فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے حصہ لیا. لاکھوں کا سامان جل گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی سعید آباد جنگل اسکول کے قریب کپڑے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی. دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گودام کو لپیٹ میں لے لیا. آگ کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں روانہ ہوئیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی. تقریباً 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. آپریشن میں فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں اور ریسکیو 112 کی عملے نے حصہ لیا. علاقہ مکین نے الزام عائد کیا کہ فائر بریگیڈ کی تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا. لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، جبکہ جزوی طور پر گودام میں موجود ہائی ریف کو بھی نقصان پہنچا. اگر بلدیہ فائر اسٹیشن کے اندر گاڑی ہوتی تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. ہمارا صرف مین ایشو یہی ہے، ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جو نقصان ہوا ہے یہ عوام کا ہے، یہ ہمارے اپنے علاقے کا ہے. کم سے کم جو ہے نا 12 سے 15 لاکھ روپے کا نقصان بتا رہے ہیں، لیکن زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر انجن ڈیمیج ہو گیا تو انجن کم سے کم 9 لاکھ روپے کا. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. آگ لگی یا لگائی گئی، پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. جاوید قائم خانی، سٹی 21. پاکستان بزنس کونسل کی نئے مالی سال کے بجٹ میں نان فائلرز پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کی تجویز. نان فائلر پر گاڑی کی خریداری پر 24% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی ہے. اس کا مقصد ٹیکس چوری کو کم کرنے اور نان فائلرز کو فائلرز بنانا ہے. اسی پر تفصیلات جان لیں گے اشرف خان سے. اشرف بتائیے گا. جی پاکستان بزنس کونسل نے نئے مالی سال کے بجٹ میں جو اہم تجاویز دی ہے، جس میں کہا ہے کہ نان فائلر پر بھاری ٹیکس عائد کیا جائے اور نان فائلر اگر کوئی بھی گاڑی خریدتا ہے تو اس گاڑی کی رجسٹریشن پر 24% کا بھاری ٹیکس عائد کرنے کی تجویز کر دی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں نان فائلر پر ایڈوانس ٹیکس ریٹ کو بڑھانے کی تجویز دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نان فائلر اگر گاڑی خریداری کرتا ہے تو ٹیکس کا مقصد جو ہے
नॉन फाइलर को टैक्स क्रेडिट में लाना है ताकि वो फाइलर बन सके। जब तक नॉन फाइलर पर भारी टैक्स आयद नहीं होंगे वो फाइलर नहीं बनेंगे। साथ ही तजवीज़ का मकसद ये भी कि अगर भारी टैक्स आयद होता है तो हुकूमत को रेवेन्यू की मद में इजाफी आमदनी होगी। साथ ही जो नॉन फाइलर हैं उनको तरजीह दी जा सकेगी ताकि वो फाइलर बन सके और टैक्स क्रेडिट में इजाफा हो, जिससे हुकूमत के जो रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया आशरफ खान। कराची ब्लाइंड क्रिकेट क्लब की जानिब से एनईटी यूनिवर्सिटी में कराची ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी का आगाज़ हो गया, जिनकी 3 टीमें टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। आज देखिए बिल्कुल जो है ब्लाइंड वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान ने कर दिया है और आज जो है एनईडी यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में जो है कराची ब्लाइंड ट्रॉफ़ी खेली जा रही है, जिसमें 3 टीमें जो है रीजन्स की हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद और कोयटा की टीमें जो हैं शामिल हैं और इसका आज आगाज़ हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं शाहज़ाब, हम उनसे बात कर लेते हैं। देखें, वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उसके सारे फाइनल हमने खेले हैं और ये जो T20 है ये चौथा है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे जो खुशी की बात है और बड़े अरसे बाद एक इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट का इवेंट पाकिस्तान में आया है, तो तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए हमारा डोमेस्टिक ज़ाहिर है पूरी दुनिया में एक मिसाल माना जाता है, तो उसके अंदर से हम खिलाड़ी भी तलाश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ भी आए हैं। और अभी हम गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ, कि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये इवेंट हम फिर कराची में करेंगे, वो सूरत दीगर किसी और शहर में ये होगा। सबसे कब तक है ज़रा इसकी मुझे डेट? ये 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगा, जो हमारा माज़ूरीन का आलमी दिन है 3 दिसंबर, उसके मौके पे इसका फ़ाइनल खेला जाएगा और होपफुली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तीनों शहरों में से किसी एक शहर में हम इसको होस्ट करेंगे। कराची ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफ़ी खेली जा रही है, जिसमें कराची, कोयटा और जो है हैदराबाद की टीम शामिल है, जिनके दरमियान ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। जी नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम देने का सिलसिला तेज़ हो गया। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रफ़ीक अख्तर के एजाज़ में इशाया रखा गया। मेहमान ख़ुसूसी ने तलबा से खिताब भी किया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध का तलबा को होनहार बनाने का मिशन जारी। गवर्नर हाउस में IT इनिशिएटिव से मुतालिक तकरीब रखी गई, जिसमें प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब से खिताब में प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर का कहना था कि रब्बे कायनात ने हमें बहुत कुछ बताया है। दौर जदीद के तमाम इंकशाफात पहले ही कुरान पाक में मौजूद हैं। लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं माइन्यूटेस्ट पॉसिबल साइंटिफिक रेफॉर्मेशंस पे और इंफॉर्मेशंस पे, मगर देखो कुरान 2 आयत में क्या कह रहा है। एक में वजह कायनात बता रहा है, एक में वजह हयात बता रहा है। अवालम यरल्लज़ीना कफरू, जो बड़ा साइंसदान है, बड़ा साइंसदान छोटों को समझा रहा है। और तुम हाउ डेयर यू डिनाई मी, ओ नालायको, और तुम मेरा इनकार कैसे कर सकते हो? कामरान टिसोरी ने कहा कि हमने जो ख्वाब देखा इसकी ताबीर IT क्लासेस की शक्ल में मौजूद है। एक ख्वाब हमने इस गवर्नर हाउस में देखा कि हम यहाँ IT की क्लासेस शुरू कराएं, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाएं और उसमें हमने लाखों लोगों के 5 लाख से ऊपर टेस्ट लिए फिज़िकली गवर्नर हाउस में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 बच्चे बच्चियाँ यहाँ ऑन साइट गवर्नर हाउस के अंदर IT के कोर्सेज कर रहे हैं। तकरीब में MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कैम खानी, साबिक सेनेटर अब्दुल हसीब समेत दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। और पाकिस्तान नेवी ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम कराची में 3 रोज़ा पेनवा ग्रैंड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में हाथों से तैयार की जाने वाली अशिया ने शुराका की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। पाकिस्तान नेवी वुमेन एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम कराची में 3 रोज़ा ग्रैंड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इवेंट में तलबा की जानिब से सारा साल तैयार की जाने वाली अशिया, जिनमें मलबूसात, सजावट की अशिया, तस्वीर, दस्तकारी शामिल हैं, नुमाइश और फरोख्त के लिए पेश किया गया। खुसूसी बच्चों की जानिब से तैयार अशिया के स्टॉल ने सबके दिल जीत लिए। ये सारा वर्क जो है ये इनका बच्चों का बनाया हुआ है, स्पेशल बच्चों का, और बहुत मेहनत से बच्चे काम करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा तो ऐसे ना कि
ایک دفعہ آپ نے بتایا تو پک کر لیتے ہیں 1-2 دفعہ میں. ان بچوں کو بہت زیادہ محنت سے سمجھانا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پک کر لیتے ہیں اور یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. جیسے یہ جوٹ ورک ہے, یہ ان کا ہینڈ میڈ یہ بنایا ہوا ہے انہوں نے, یہ پینٹنگس ہیں, آپ کلاس پینٹنگ دیکھیے اس طرح سے. اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ پک کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو اسٹالز لگانے والی خواتین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ٹیکسٹائل کورس کے بعد نوکری کریں گے. نیا تو آگے آنے والے سوچیں گے, ہمارا تو لاسٹ ہم یہاں سے نکل جائیں گے, ہمارا لاسٹ ایگزیبیشن تھا, اس کے بعد اب جو نئے آئیں گے وہ دیکھیں گے وہ کیا کریں گے. ڈسکاؤنٹ تو جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کے لیے تو آلریڈی ڈسکاؤنٹ ہے, اور کیا نام ہے جو باہر سے سویلین لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی آج اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہے, کیونکہ آج لاسٹ ڈے ہے تو آئیں اور کیا نام ہے ڈسکاؤنٹ لیں. پنوا کا گرینڈ فیسٹیول آج اختتام پذیر ہو گیا, جس سے حاصل ہونے والی آمدنی پنوا کے زیر انتظام چلنے والے مختلف فلاحی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی. ایکسپو سینٹر میں چائکون کاروباری میلہ نمائش میں 350 سے زائد سٹالز لگائے گئے. نمائش کا مقصد ملکی مصنوعات کی تشہیر اور تجارت کو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ نئے کاروبار میں دلچسپی لینے والے نوجوانوں کو معاشی طور پر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے گئے. خوشی رحمانی کی رپورٹ دیکھیے. پاکستانیوں کو خود کفیل بنانے کا مشن. ایکسپو سینٹر میں چائکون کاروباری نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس کا مقصد ملکی مصنوعات کو فروغ اور نئے آنے والوں کو کاروبار کے لیے آئیڈیاز دینا ہے. نمائش میں 350 سے زائد اسٹالز لگائے گئے. 20.P کے یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے اور فریگرنس برانڈ ہے. پاکستانی ہم اس کو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, اور چائکون میں ہم اس لیے آئے تھے کہ تاکہ ہم اس کو پروموٹ کریں, B2B کنزیومر ہم اس میں بڑھائیں. کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے آپ کو ایک رائٹ ٹیم, رائٹ سوچ اور رائٹ پروڈکٹ اور ہارڈ ورک نہیں چاہیے, اسمارٹ ورک چاہیے, اور اسمارٹ لوگوں کے ساتھ آپ کو کنیکٹ ہونا ہے. نمائش میں پاکستان میں بننے والی مصنوعات شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں. بہت زبردست چیز ہے یہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ایگزیبیشنز جو ہے نا وہ کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے. میڈیم سائز کے جو بزنس ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے, ان کی ہسلنگ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یار پاکستان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ بس پراپرٹی میں پیسے لگاتے رہو, ڈفرینٹ قسم کے بزنس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے اس ملک سے اور انشاءاللہ تعالی یہاں کے جتنے بھی عوام ہیں, ہم نے خود سے اپنا آپ کو سوچنا ہے, جیسے مطلب باہر کی کنٹریز میں مطلب لوگ کر رہے ہیں, تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں سے ایک اچھی ارننگ لے کر جائیں. نمائش میں خشک سبزیاں, قدرتی نمک, پرفیوم, عطر, بسکٹس, بچوں کے ملبوسات, بیڈ شیٹ, آئس کریم, مسالہ جات, شہد, سلاجید, دیسی گھی, پاکستانی مینوفیکچر مشینریز, بچوں کی سائیکلیں, لیدر شوز, بزنس کونسلنگ, اسٹیشنریز اور دیگر مصنوعات کے اسٹالز بھی لگائے گئے. کیمرہ مین شازیب رضا کے ساتھ خورشید رحمانی, سٹی 21.